Hello students, welcome in HPGK Hub, Computer Series 3 Special MCQ Series. In this series, we will discuss questions related to previous lectures. So, let's begin. Students, knowledge is of no value unless you put it into practice. So, keep on practicing. First question of today is, MS Word is a text or document editing application program that comes in package of MS Office Suite. MS Word एक टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एडिटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो MS Office Suite के पैकेज के अंडर आता है. Which among the following is not related with MS Word? इनमें से कौन सा MS Word से रिलेटेड नहीं है? मेलिंग, फॉर्मेट प्रिंटर, एंटीवायरस, स्मार्ट आर्ट. Students, you can take your answer. I will give you 5 seconds and at the end of video you can check your scores. Yes, your right answer is option number C. Antivirus is not a feature or related to MS Word. Next question is, when computer uses blank a document, they change its appearance. कंप्यूटर यूज़र क्या करता है जिससे डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज हो जाती है? क्रिएट, फॉर्मेट, सेव, एडिट. Yes, your right answer is option number D. When computer users edit a document, they change its appearance. Next question is, in which menu we will find the command document? किस मेन्यू में हम कमांड डॉक्यूमेंट पाते हैं? इंसर्ट, डाटा, टूल्स, फाइल. Yes, your right answer is option number B. In data menu we find command document. Next is the What is MS Word? MS Word क्या है? A calculating tool, a planning tool, a chart, a document typing tool. Very easy question. MS Word is a document typing tool. अगर आपने हमारी previous videos देखी होंगी तो आप इन सभी questions को very easily solve कर सकते हैं. Next is a program which helps to create written documents and lets you go back and make corrections as necessary. ऐसा प्रोग्राम जो आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न करने में हेल्प करता है, क्रिएट करने में हेल्प करता है और उसमें करेक्शन करने और गो बैक जाने में आपकी हेल्प करता है, इज स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रिंटर और पर्सनल राइटर. यस, इट इज वर्ड प्रोसेसर. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय द यूजर इन वर्ड? वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी. यस, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. नेक्स्ट इज अ सॉफ्ट पेज ब्रेक्स. सॉफ्ट पेज ब्रेक्स क्या है? कैन बी डिलीटेड, are one to show end of paragraph, are induced by the user, are inserted by Word automatically at the end of page. Soft page breaks are inserted by Word automatically at the end of page. D option is the right answer. Next question is, you specify the save details of your file in the file save dialog box, save as a file dialog box, save the file as dialog box, or any of 1 and 2. Here right answer is option number B, save as a file dialog box. B option is the right answer. Next is a keyboard shortcut for cut command is. कट कमांड के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एक्स. जब भी आप वर्ड में कुछ डिलीट करते हो, कट करते हो बाय यूजिंग कमांड कंट्रोल प्लस एक्स, वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, टेम्परेरली हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है जब तक आप उस डाटा को कहीं और पेस्ट नहीं कर देते हो. नेक्स्ट इज इन MS Word द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज. MS Word में पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या रहती है?
लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर्ड, जस्टिफाइड. यस, इट्स लेफ्ट अलाइनमेंट. जब हमने वीडियो में ये कॉन्सेप्ट किया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. In MS Word, the default alignment for paragraph is it's left. Next is how many ways you can save a document. कितने तरीकों से आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? 3, 4, 5 और 6. Your right answer is option number A by 3 ways. Next, to increase the line spacing, use the dash shortcut keys. लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हो? Ctrl+L, Ctrl+5, Ctrl+M, Ctrl+I. Yes, your right answer is option number B, Ctrl+5. There are 3 shortcut keys to increase the line spacing: Ctrl+5, Ctrl+1 and Ctrl+2. Next is, which among the following justification align the text on both the sides left and right of margin? इनमें से कौन सी जस्टिफिकेशन टेक्स्ट को बोथ साइड लेफ्ट और राइट मार्जिन में अलाइन करता है? बैलेंस्ड, जस्टिफाई, राइट और बोथ साइड्स. Your right answer is option number B, justify alignment, justified text on both side left and right of margin. Next is, which of the following can be used to select the entire document? इनमें से कौन सी कीज से आप इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो? जितना भी आपने डाटा लिखा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो. Ctrl+K, Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+H. Your right answer is option number B. By pressing Ctrl+A, you can select entire document. Next is, a dash is an additional set of commands that the command is after you make a selection from main menu. Yes, menu selection, sub menu, dialog box, all of these. जब भी आप मेन मेन्यू से कोई सिलेक्शन बनाते हो तो कंप्यूटर में एक एडिशनल सेट ऑफ कमांड डिस्प्ले होता है. दैट इज नोन एज मेन्यू सिलेक्शन, सब मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सब मेन्यू. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है? WD, FIL, TXT, DOC. Yes, your right answer is option number C, D. It's D, DOC. बट अभी जो लेटेस्ट वर्जन आए MS ऑफिस के उनमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहती है DOCX. 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स हैं MS ऑफिस में उनमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन रहती है DOCX. उससे पहले जितने भी वर्जन्स थे उनमें DOC रहती थी. बिफोर 2007 DOC एंड आफ्टर 2007 डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड इज़ DOCX. वट इज़ एक्सटेंशन? एक्सटेंशन जब भी आप फाइल को सेव करते हो तो फाइल के नेम के साथ .doc या फिर .docx लिख के आता है. दैट इज़ फाइल एक्सटेंशन. Clear? It's also very important question. Next is, to move to the bottom of a document while working on MS Word, which command is used? एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हुए आपने बॉटम के ऊपर जाना है तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? होम की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, कंट्रोल प्लस एंड की और एंड की. यस, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, control plus page down key. Next is, when entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every. जब आप किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर कर रहे हो
तो एंटर की कब प्रेस की जाती है? एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड और एवरी पैराग्राफ. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. At the end of every line, you will press enter key. Next is to undo the last work, we have to use which of the following Windows shortcut key. जो आपने लास्ट वर्क किया है, लास्ट एक्शन किया है, उसको अंडू करने के लिए, उसको बैक करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस यू. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस जेड टू अनडू द लास्ट वर्क. फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से विंडोज़ लिख दिया है, आपने इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो वो वर्ड जो है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड मीन्स, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है उसको एडिट करना मीन्स स्कैनिंग इट, प्रिंटिंग इट, करेक्टिंग इट और सेविंग इट. It's correcting it. Very easy question. Next is shortcut key to go to last line in the document. डॉक्यूमेंट में लास्ट लाइन जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस लास्ट, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एंड, अल्ट प्लस एंड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एंड. नेक्स्ट इज when you start MS Word, the opening document has the name as. जब भी आप MS Word स्टार्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका नाम आ जाता है एज वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, DOC1, डॉक्यूमेंट 1. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट 1. अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस फाइल का नेम आ जाता है डॉक्यूमेंट 1. आप टाइटल बार के ऊपर देख सकते हो, टाइटल बार के ऊपर आपको नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन शो होता है. तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने सेव नहीं किया है फाइल, अभी आपने कोई नाम नहीं दिया है फाइल को, ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो उसका नाम आ जाता है डॉक्यूमेंट 1. नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इज. डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी. टू प्रिंट कंट्रोल प्लस पी. B option is the right answer. Next, the word processor would be used best to. word processor का use best किसके लिए किया जा सकता है? To draw a diagram, to work out income and expenses, to type a story, to paint a picture. Right answer is option number C, to type a story. Next, the process of making changes to an existing document is referred to as इट. एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मॉडिफाइंग, एडिटिंग, क्रिएटिंग और चेंजिंग. यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडिटिंग. नेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट. ऑटो टेक्स्ट का यूज क्या इंसर्ट करने के लिए किया जा सकता है? टू इंसर्ट ग्राफिक्स, to insert text, either one or two, both 1 and 2. Here right answer is option number D, both 1 and 2. Auto text can be used to insert graphics as well text. Next is, in order to delete a sentence from a document, you would use. एक डॉक्यूमेंट से कोई सेंटेंस आपको डिलीट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? कॉपी एंड पेस्ट, highlight and delete, cut and paste, highlight and copy. Then you will select option number B, highlight and then delete. Next is, in Word you can force a page break. Word में आप पेज ब्रेक कैसे फोर्स कर सकते हो, फोर्सफुली कर सकते हो? by changing the font size of your document, by pressing F1 key, by pressing Ctrl plus Enter, by using the insert section break. Here right answer is option number D, by using the insert or section
break option. Next is to move to the beginning of a line of text, press the key. किसी लाइन की बिगनिंग में आपको जाना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे? A, एंटर, पेज अप, होम. शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एग्ज़ाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें. प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर सीरीज सेकंड में आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी A to Z. Here right answer is option number D, home key. By pressing home key, we can move to the beginning of a line of a text. Next, Microsoft Office was developed by. Microsoft Office किसके द्वारा डेवलप किया गया? Yes student, this is a question for you guys. अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. By Sun Microsoft 1970, by Microsoft in 1980, by Maxwell in 1990, by Samsung in 1978. कौन सी कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया गया है? Write your answer in comment box. And don't forget like, share, subscribe if you like the video. Thank you.